Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. We're starting with the first example, which is not actually. I'm not going to solve an example, but I want you to brainstorm through this example. So if we have this beam, and I ask you to find the, let's say this is 10 kilonewton, and let's say this is, let's say this is 5 meter, and this is also 5 meter. Maybe I can change this. This is 2 meter, and this also 2 meter. All right, so I want you to find the directions. Please find the directions. Everybody, please find the directions. This is A and this is B. Nextly, you will have to draw free body diagram. So we'll have a direction over here, then vertical, and then horizontal, and then a moment over here. So let's call this as AY. Maybe you can call it RA, RB, MA, and maybe this is RAX. So please find RAX, RA, RB, and MA. Please find these directions. Have you started finding the directions? Sir, RA5, RB5, RAX0. Okay, somebody's got the answer. Yes, sir. So let me see. Yes, sir. Yes, sir. RA5 and RB is RA is also equal to correct. how much? 0, sir. 0. RA5, RA is 5, 5, 5. RB 5, 5. And MA? 5. MA is also 5? I haven't calculated. No, sir. 0. Sorry? MA is 0, sir. MA is 0, 0. sir. Okay. Okay. MA is 0. Anybody else? Anybody who has answers different from this? Or anybody who disagrees to this? सर जी सर मूवमेंट टर्न नहीं आएगा सॉरी सर मूवमेंट MA 10 आएगा Okay, somebody say this should be 10, and what about this? ये सर 5 ही है 5, and what about this? 5 5, what about this? 0 0, okay. Anybody else? Or anybody who disagrees to any of these two solutions? This is second solution. सॉरी सर Yes, please. सर MA 0 ही है MA is 0, okay. So essentially we end up the same solution. So up till now we have just one solution. And all of you agree to this solution? Or anybody who has a different answer? Agree, sir. All of you agree to this. Well, if you are smart enough to find these directions in maybe less than 5 minutes, I don't need to teach you this lecture. I can simply ask you to go and leave it. Sir, I have a question, sir. Because if you know how to find the directions of this, there is no point in teaching you. But by the way, this is wrong. These directions are wrong.
Anybody who can say why can it be wrong? Well, can you dictate me what went wrong with your problem? Let's say summation fx equal to 0, starting with this and taking rightward positive. You can see that, please let me see what should I write next. Please dictate me. What should Sir, AX equals 0. RAX equal to 0? That's right. Okay, it means this is right. Sorry, this is right. Okay, what next? Sir, Submission sigma FY equals 0. Fy equal to 0. Okay, go ahead, that's right. So when you say summation Fy equal to 0, you should have Ra and Rb in this term. Okay, Ra plus Rb minus 10 equal to 0. Newton. Agree to this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Means Ra and Yes, sir. Rb should be equal to 10. That's right. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we haven't yet found the values of Ra and Rb, the individual values, but we know that their sum has to be equal to 10. That's it. Yes, sir. Okay, what next? Summation m equal to 0, and let's take summation about a equal to 0. Okay, and let's take this direction positive. You can take whichever direction you like, you can consider that positive, but let's take this direction positive. Then what should I write next? Let me just bring this part, free body diagram, down over here so you can see it simultaneously while writing the equation. So what should I write now? RB RB 4 RB summative into level. 4. RB into 4. RB times 4 4. What next? Achha, with this minus Minus 10 10 is to in 2. this Multiply. direction, producing moment in this direction, and we have treated this direction positive, so it will be with a positive sign. Agree? We're taking moment about A, Yes. and this is the direction of RB. It would have tendency to rotate about A like this in this direction, and we are treating this direction positive, so it will be with a positive sign. That's very basic. Okay, what next? 10 into 2, sir, negative. 10 into 2 with a negative sign because it is opposite to what we consider positive. All right, what next? What about RA and RAX? Will they produce any moment about A? No, sir. No, sir. 0. Okay, No, sir, as they you're won't passing produce through any A, moment. so That's right. no. What should I write next? Equal to 0. Equals to 0. Equal to 0. But I guess you are missing something over here. Okay. MA. Will it be MA. different? Will it be different if the beam were simply supported like this? What's the difference between these two beams? One end is fixed, sir. Here we have a fixed support, and for this beam we have a pin support, which means it cannot resist any moment. It cannot resist any rotation, which means it cannot develop a moment fraction. Just like this one. So, but if it is fixed like this one, it means it is capable of producing a moment reaction, and that's why we have it in the free body diagram. All right. So what should I write next? Sir, plus MA. Plus MA. This was the point you were missing on. Now let me ask you, if you can solve this system of equation, we have 4RB plus MA equal to 20. This is another equation. This is already done. So we have three equations in total. Equation 1, equation 2, and equation 3 in total. And we have how many unknowns? How many reactions to be determined?
2, sir. 3. 2 remaining. 3. In total, how many reactions do we need to find? R 3 body diagram. 4 R Four. AX RA MA. So what's the count? 4? Yes, sir. 4. 3 on this side and 1 over here. So we need to find 4 unknowns. We have 3 equilibrium equations. As far as this one is concerned, we have consumed one equation which was available and we have found one unknown. Fine. So in total we had number of equations and number of unknown reactions. Initially we had 4 equations and 3 unknowns. We consumed one of them and then we were left with 3 equations. This is wrong. We had 3 equations, 4 unknowns, and now we consumed one from each. So we have 2 equations and 3 unknowns. This is what we have. These 2 equations, this one and this one. We have these 2 equations and how many unknowns? 3, sir. 3 unknowns. So Three, it's sir. possible to solve for 3 unknowns with 2 equations available. No, sir. No, sir. So how do you solve this? How do you solve this? What do you call such kind of structures which have more unknowns than the number of available equations? Indeterminate. Statically indeterminate, sir. Indeterminate. The complete name is statically indeterminate, but because there is another term also used, kinematic indeterminacy, but we will discuss that later in the semester. But just to be clear, this is the full name is static indeterminacy. So this beam was statically indeterminate to which degree? How many degree indeterminate? 1 degree, sir. 1 degree 1 degree. indeterminate. It means there was one unknown in excess of the number of available equations. Equilibrium equations, to be clear. Alright? So it means, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं somehow, अब मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे, but somehow if I get an additional equation, additional to these 3, or should I say additional to these 2, अगर इनके अलावा मैं कोई और इक्वेशन ले आऊँ जिसके अंदर ये रिएक्शंस आ रहे हों, तो मेरे पास इक्वेशंस जो अननोन्स 3 हैं और इक्वेशन भी 3 हो जाएंगी ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Then it would be possible to solve this system of equations. It will be possible to determine all the reactions if we somehow develop an additional equation. Or put it like this, if somehow I can find one of these 3, अगर इन 3 में से कोई एक मुझे किसी और तरीके से पता चल जाए without using my equilibrium equations, for example, if somehow I get to know this RB, then I'll be able to solve this equation for RA because then RB would be known. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Once Yes, I sir. know RB, I can also solve for this equation because I'll be putting the value of RB and I'll be able to solve for MA. So what should be the objective? What should be the first thing we should do? We need to find a way to determine one of these unknowns without using equilibrium equation, using some other equation. We will give there is a specific name for that equation, but that's something we're going to discuss down the lecture. But right now, the objective is that we need to determine one of these unknown reactions without using equilibrium equation, using maybe some other equation. Agree? Yes, sir. Now, Yes, sir. there are multiple ways to solve. Somebody may say, I would first find RB and then I'll come back to these equations and put the values of RB and complete the system of equation, solve the system of equation. Somebody else may say, no, I would first like to determine MA
And then once I know MA, I'll be able to put it over here and I can find RB. And then once I know RB, I can put it over here and I can find RA. Agree? So there may be Yes, sir. more than one ways to solve this problem depending upon which unknown you determine first. Agree? Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. And both the solutions will end up the same answer, same ultimate reactions. Now, जिस unknown reaction को आप पहले find करने का इरादा कर लें या आप कहते हैं कि मैं इसको पहले find करूँगा और बाकियों को मैं फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व करके यूज करके सॉल्व करूँगा, तो जिसको आप पहला अननोन यानी विदाउट यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आप फाइंड करना चाहते हैं उसको हम एक नाम देंगे रिडंडेंट. क्या लिखा मैंने? Redundant. रिडंडेंट यानी रिडंडेंट फ्रैक्शन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन सिंपली रिडंडेंट भी आप कहते हैं तो आप इट्स एनफ. Redundant. It means the first thing to do in this problem is to identify, or should I say pick your redundant. For example, I pick RB as my redundant, then I would say, by the way, these are wrong. So once I know RB, I'll find these two by using equilibrium equations. All right? Yes. Now here is another term that I want to use over here. Let me just bring it down over here. Maybe I can copy. I mean, this figure is exactly the same as this figure, except that this is a free body diagram and this one is. Okay, let me just copy both of them if I can. Where did it land? All right. Okay, so based on what we have discussed, this was 10 kilonewton, this is also 10 kilonewton. Now I have chosen this as my redundant, so if I temporarily, just temporarily remove this reaction, this redundant, if I just drop it temporarily, what it means, I'll be left with this system. Agree? Just temporarily, if I drop the redundant fraction, I'll be left with this beam. Yes, sir. Yes, sir. This structure, which you get after removing the redundant. Let me let somebody in. What is that? आ गए अंदर? All right. Now this structure, which you get after removing the redundant, this is called maybe I can primary structure. This is called primary structure. So this is my primary structure. How do you get primary structure? You drop the redundant and you get your primary structure. Is it clear? Is this clear? Yes, sir. Now there are two conditions Yes, for sir. primary structure. Number one,
It should be determinate, must be determinate. Is this determinate or not? Yes, sir. Determinate. It is determinate. And the second condition, and more importantly, it needs to be stable structure. What I mean by that is, you can obviously choose RB as a redundant and be left with this beam as your primary structure, but it is not possible that you remove RB as well as maybe MA or maybe MA also. If you remove MA from this, you will be left with something like this. It will be a beam like this. Now this is no more stable because it apply this 10 kilonewton load and the beam state completely like this. It will collapse. So you have to choose redundant such that the remaining structure is a determinate structure, which means you need to remove enough number of redundants and it must be stable as well. So you could choose RB as your redundant, or you could also choose MA as your redundant. Now this is primary structure taking RB as redundant, but if I wanted to treat MA as redundant, if I wanted to treat this one as my redundant, then I would be having a different primary structure. It would be like this. Agree? Yes, sir. You can just move the loadings applied. This is the primary structure. ये तो मैंने बाहर से लोड लगाया था ना, जो एक्सटर्नल लोड लग रहा था. जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है जो आपको अभी नजर आ रहा है. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. ठीक है जी. ये बना दिया. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता अगर मैं MA को एज रिडंडेंट लेता. आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, whichever you feel comfortable with. If you're comfortable with cantilevers, you can choose this one. If you're more comfortable with simply supported beams, you can choose this one, whichever you like. Both are fine. ठीक है जी. Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि लेट्स से हम इसको एक चॉइस ले लेते हैं. मसलन मैं इसको चॉइस ले लेता हूँ. ये जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखा दिया, ये मेरी चॉइस है. लेट्स से प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है मेरा. अच्छा, अब आपको एक प्रिंसिपल मैंने पहले बताना है क्विकली, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ एंड देन वी विल कम बैक टू दिस. दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट्स. अच्छा, अगर आपको एक बीम इस तरह से गिवन हो, उस पर डिफरेंट लोड्स लग रहे हो, P1, P2, P3, और मैं आपसे कहूँ कि आप इस बीम का B के ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें. प्रॉब्लम समझ आ गया? यस सर. अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एक तरीका तो ये कि आप सब इन तीनों लोड्स को इकट्ठा डील करें. दैट्स ऑल्सो फाइन. एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप एक टाइम पे एक लोड अप्लाई करें, जैसे मैंने P1 अप्लाई किया, और फिर आप डिफ्लेक्शन फाइंड करें B के ऊपर. लेट से उसको नाम दे दिया डेल्टा B1. फिर आप दूसरा लोड अप्लाई करें और बाकी लोड्स हटा दें, अकेला यही अप्लाई कर दें, और P2 की वजह से डिफ्लेक्शन फाइंड करें B, इसको आप डेल्टा B2 कह दें. इसी तरह P3 की वजह से फाइंड कर दें, और इन तीनों को आप सम अप कर दें, तो आपके पास डेल्टा B आ जाएगा. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था कि आप दो को एक ही दफ़ा कर देते, तीसरे को अलग से कर देते. हर दोनों सूरतों में जो भी डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं उनको सम अप कर देते. ठीक हो गया? ये समझ आ गया आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट? Yes, sir. अच्छा, अब वापस इस प्रॉब्लम पे आगे जो हम कर रहे थे. यस प्लीज सर, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिपीट कर देंगे? रिपीट कर रहा हूँ. ओके, ये कैंटिलीवर बीम है. इस पे तीन तरह के लोड लग रहे हैं, 3 पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, P1, P2 और P3. ठीक है, मैंने इन तीनों की वजह से इस कैंटिलीवर बीम में B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट B, डेल्टा B फाइंड करना है. क्लियर?
यस सर, यस सर, ये कहता है कि अगर आप इस तरह से कर लें कि आप ये बीम ड्रॉ कर दें, उस पर P1 लोड अप्लाई करें, ये वाला, बाकी दो हटा दें फिलहाल, और सिर्फ एक अप्लाई करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दें, उसको नाम लेट से मैंने दे दिया डेल्टा P1। फिर आप ये हो गया अलग से, अब इस बाकियों को हटा दें, ये सिर्फ P2 अप्लाई कर दें दूसरा वाला, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दें दोबारा से डेल्टा B2। डिस्प्लेसमेंट उधर ही दोबारा फाइंड करनी है, ठीक है, डेल्टा B2। ठीक है सर, कि तीसरी दफ़ा आप इधर फाइंड कर रहे हो, अगली दफ़ा फिर सिर्फ वो तीसरा वाला लोड रखें और यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दें, डेल्टा B3 नाम दे दें लेट से उसको, जो भी वैल्यू बनती है, लेकिन नाम दे दिया डेल्टा B3। तो अगर आप डेल्टा B1, डेल्टा B2 और डेल्टा B3 को सम अप कर दें तो आपके पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल ऑफ दीज लोड्स आ जाएगा। जी सर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक लिमिटेशन है कि स्ट्रक्चर जो है वो इलास्टिक, लीनियर इलास्टिकली बिहेव कर रहा हो, यानी समझ लें कि मटेरियल उसको जो है ना वो भी इलास्टिक रेंज में हो, ठीक। हम एज्यूम करें कि हमारा जो सर ये डिफ्लेक्शन फाइंड करने का फार्मूला है, आप इसको फार्मूला कहना चाहें तो कह दे, लेकिन वैसे मैं एक प्रिंसिपल बता रहा था। यानी एक तरीका तो ये है ना कि आप तीनों लोड्स को इकट्ठा डील करें, जैसे आमतौर पे आप सर वो समझ गया सर आपकी बात। सिर्फ सर ये पूछ रहा हूँ कि ये डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है सर वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके निकालनी है, किस तरह निकालनी है? ये वाली, अच्छा ये डेल्टा B1 ये कैसे निकलेगा? जी सर, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, यही पूछ रहा हूँ। ये आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दें, आपने एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर मेथड पढ़ा है एक, उस जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं, उसका नाम आप बता सकते हैं? क्या नाम था उसका? मेथड ऑफ वर्चुअल फोर्स। हाँ, मेथड ऑफ वर्चुअल फोर्सेस। यार भले फेल भी हो गए हो तो नाम तो कम से कम याद होता है ना कि यार इसका नाम ये था, जिसके अंदर मैं मुझे जी जी सर, आ रहा था, जो मुश्किल था, जो भी था, वो नाम तो बंदे को याद होता है ना। नहीं सर मैं पास हूँ वैसे। नहीं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बाकी कह रहा हूँ, ठीक है। जी सर, जी सर, You can use any method you like to determine this delta B1. No restriction on method in this class. अब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में आ गए ना, अब मैं आपसे कहूँगा आपको जो मेथड आता है आप उस मेथड से फाइंड कर दें, मुझे बस ये डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला निकाल दें कहीं से, नेट से निकाल दो डायरेक्ट फार्मूला, मुझे कोई नो प्रॉब्लम, आई एम ओके विद इट। बस आप किसी तरह से मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दो, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में का मतलब है दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक। अच्छा जी सर, आप समहाउ आप ये फाइंड कर देंगे तो आपका डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? यस सर। अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जो हम सॉल्व करने चाह रहे थे, हमारा ये गिवन बीम था, हमने उसके अंदर से आरबी को रिडंडेंट ले लिया, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बन गया, और ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट भी है, स्टेबल भी है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो मैं क्लियरली यहाँ पे लिखने लगा हूँ आपके लिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप बाद में कहें कि ये आपने क्या किया है, आपको ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, ठीक। व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव? अभी जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं, यानी ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये तीनों रिएक्शंस निकालने हैं, ठीक। लेकिन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार ये आर बी किसी तरह पता चल जाए तो बाकी तीन तो मैं फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास तीन है, उनसे मैं निकाल दूंगा, क्लियर? यस सर। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? रिडंडेंट रिएक्शन फाइंड करना सर। रिडंडेंट रिएक्शन को फाइंड करना, जो कि हमने आर बी को चूज कर लिया। इमीडिएट में इसको चलो कह देता हूँ, ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हमारा इस वक्त ये है कि हम कोई ऐसा प्रोसीजर करने निकले हैं कि बगैर कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ किए हम आर बी जो कि हमारा रिडंडेंट है इसको फाइंड कर दें, ठीक हो गया, विदाउट यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यानी मेरी मुराद ये कि ये वाली जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है ना जो हमने पहले लिखी हुई हैं, इनको यूज़ किए बगैर, ठीक हो गया। ये नहीं कि बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ इकट्ठी हो गई कि अब आपको तो यूज़ करने नहीं है, आपको तो यूज़ के बगैर हमने आर बी निकालना है, ये मतलब नहीं है। जो इस बीम के लिए आप लिख सकते थे ना इक्वेशंस, उनको यूज़ किए बगैर, जाहिर है उनसे तो काम नहीं चल रहा था, वो तो एक कम पढ़ रहा है ना, इक्वेशंस एक कम पढ़ रहा है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो अब आपको मुझे दोबारा से बताओ, ये बात मैंने आपको दोबारा आखिर में फिर पूछनी है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा?
फाइंड RB. किसी Redundant तरह फाइंड करना से किसी तरह से RB पता चल जाए, फाइंड करना ठीक हो गया। सो उसके लिए हमने अब एक मैजिक करने जा रहे हैं। मैजिक आप इसको बाद में कहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने ये किया कि ये जो हमें नहीं पता ना, इसको ड्रॉप कर दो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दो। जो नहीं पता ना, इसको बिल्कुल ही गायब कर दो कि ये जैसे हो ही ना, टेम्परेरीली बाद में लेकर आएंगे, लेकिन टेम्परेरीली, ठीक है। जिसके हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। अब ये डिटर्मिनेट है, इसके ऊपर जो आप एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं वो सारा कुछ इस पे अप्लाई होता है। इसलिए कि आप डिटर्मिनेट बीम्स आपको सॉल्व करने आते हैं ना, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा हुआ, मैकेनिक्स मटेरियल पढ़ा हुआ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी हुई, ठीक है। तो जो आपने स्टैटिक्स अभी तक पढ़ी है, ऑल ऑफ इट अप्लाइज आई एम सॉरी टू दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इसको इसी को यूज़ कर लेता हूँ दोबारा से, गिव मी अ सेकंड। ये बीम है, अच्छा ये तो मैंने हटा दिया ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, अब वापस मैं इसी ऑब्जेक्टिव की तरफ आऊँगा, लेकिन अब ज़रा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस गिवन बीम में, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, गिवन बीम में, इन गिवन बीम जहां से हमने ये जहां पे हमने रिडंडेंट चूज किया ना, इसकी बात करेंगे आगे भी, ठीक है। इस गिवन बीम में, जिसको मैं एक्चुअल कह देता हूं, डेल्टा बी एक्चुअल, इसकी वैल्यू कितनी है? अगर यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट आपने लगा दिया और उसके अंदर कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, वो रोलर सपोर्ट खुद कुछ नीचे बैठ नहीं रहा है, प्रेस भी नहीं हो रहा है, रिजिड है, तो वो इस बीम के इस एंड को नीचे आने देगा? यहाँ पर जो एंड है, नो सर, नो सर. No, sir. No, sir. इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस गिवन बीम में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. 0. मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है और उस रोलर सपोर्ट को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, अनयील्डिंग है, उसमें कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, ठीक हो गया। तो डेल्टा बी एक्चुअल जिसको मैं कह रहा हूँ, ये असल गिवन बीम की बात हो रही है कि उसमें ये 0 है, ये बात हमें पता है, ठीक। लेकिन अभी हम जस्ट प्रिटेंड करने जा रहे हैं कि ये हमें नहीं पता, यानी हम ऐसे ही समझ लेके जैसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना एक्चुअल बीम में, वो हमें नहीं पता, ठीक। जस्ट प्रिटेंड करने जा रहे हैं। अच्छा, और हम कहते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, हमें तो पता तो है वो 0 है। इसकी ज़रूरत ये, इसकी इसको फाइंड करने आप निकलेंगे ना, इस डिस्प्लेसमेंट को, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना, ये वाली, ये नॉन डिस्प्लेसमेंट, इसको आप जब फाइंड करने निकलेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो बीच में से आपको आर भी निकलता हुआ नजर आ जाएगा कि आर भी निकल आया, आर भी पता चल गया। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. हमें पता है कि गिवन बीम में डिस्प्लेसमेंट एट बी 0 है, ये बात हमें पता है, ठीक। लेकिन इस नॉन इंफॉर्मेशन को यूज करके अभी हम जरा प्रिटेंड करते हैं कि हमें नहीं पता इस बी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बाद में हम दोबारा कहेंगे पता है, लेकिन अभी हम फॉर द टाइम बीइंग हम कह रहे हैं हमें नहीं पता, और हम इसको फाइंड करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? अच्छा, वैसे एक बात बताओ, ये है ना आर बी जिसको हमने ड्रॉप किया हुआ है, Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ इस गिवन बीम में, अच्छा आर बी की वैल्यू हमें नहीं पता इस वक्त, लेकिन जो भी वैल्यू, यही वो वैल्यू है जो यहाँ पे बीम में असल में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जो कि हमें मालूम करनी है, ये वाली। इस बीम में और इस बीम में कोई फर्क तो नहीं है ना? जहाँ रोलर सपोर्ट था वहाँ पे मैंने रिएक्शन शो कर दिया, ये तो रिएक्शन, या आप सपोर्ट शो करते हैं या उसकी जगह पे रिएक्शन शो कर देते हैं, ऐसे ही है ना? जी एग्री? और Yes, sir. कहता हूं प्रिटेंड दैट डेल्टा बी इन द एक्चुअल बीम इज अननोन, ठीक है जी। आप सुन रहे हैं ना, मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ,
आप एक्टिवली सुन रहे हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ओके ओके ऑलराइट, थैंक यू। सो ये अब हम पे प्रिटेंड करने जा रहे हैं कि डेल्टा बी हमें नहीं पता और हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है? और सो लेट्स डिटरमिनेट यूजिंग अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा वो क्या कहता है कि जो आपको, अच्छा इसमें अंदर ये जो लोड है ना, इसको मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड से मुराद है कि बाहर से एक लोड लग रहा है ना इसके ऊपर। ये इस केस में हमारे पास एक पॉइंट लोड है, ये एक यूडीएल भी हो सकता था, ये इसके साथ पॉइंट लोड प्लस यूडीएल भी हो सकता था, इस तरह की कोई लोडिंग भी हो सकती थी। लेकिन इस वक्त हमने आसान करने के लिए ना एक लोड निकाल दिया, एक लोड शो कर दिया, ठीक है जी, एक्सटर्नल। इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल लोड। तो इसको क्या नाम दिया है? रिडंडेंट, यही नाम दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन Yes, sir. कहता है कि आप अगर ये डेल्टा बी फाइंड करने जा रहे हैं तो आप यूं करें कि आप, गिव मी अ सेकंड, इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, चलो ये रहने दें। एक टाइम पे मैं 10 किलो न्यूटन का जो हमारा एक्सटर्नल लोड का पार्ट है उसको मैंने शो कर दिया और रिडंडेंट हटा दिया, ठीक? तो जाहिर है कि यहाँ पे इस बीम में we will see some displacement happening over here. अगर मैं इसकी कुछ डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ड्राइंग को अगर आप नेग्लेक्ट करें थोड़ी देर के लिए कि मैं कैसी ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता तो है कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ ना। मैं ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देता हूँ, ठीक? इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दूंगा डेल्टा बी। डेल्टा बी तो कहना ही कहना पड़ना है ताकि पता चले कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ना। दूसरा मैं इसको नाम देता हूँ डेल्टा बी नाट, जीरो जो लिखते हैं ना इसको हम नाट भी बोल देते हैं, ठीक? ये नाट जीरो को बोलते हैं, ठीक है जी, डेल्टा बी नाट। नाम से तो कोई इतराज नहीं, नाम तो मैं कोई भी रख सकता हूँ ना इसका। Yes, sir. अच्छा, Yes. अब ये बात कि अब ये डेल्टा बी नाट फाइंड कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया। भले डायरेक्ट फार्मूला निकाल के मुझे बता दो, आई डोंट माइंड। भले कोई वर्चुअल फोर्स का मेथड यूज़ कर दो, कोई डबल इंटीग्रेशन यूज़ कर दो, जो भी मोमेंटरी मेथड यूज़ कर दो, जो भी यूज़ करना चाहो, आई एम फाइन विद दैट, ठीक है जी। प्लस आगे क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट के अंदर मैं ये हटाऊंगा, ये नहीं रखूंगा, और क्या लगाऊंगा, कौन सी चीज़ शो करूंगा यहाँ पे, कौन सा लोड यहाँ पे दिखाऊंगा, कौन सी फोर्स। ये तो मैंने Redundant. कर ली है, अब क्या रह गया बताओ? Redundant. रिडंडेंट ही रह गया ना। रिडंडेंट भी एक फोर्स ही है तो एक बाहर से लगने वाली एक फोर्स, लेकिन बस ये सपोर्ट की रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको अलग से एक नाम दे दिया डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसको हमने खास नाम यहाँ पे दिया रिडंडेंट। तो ये रिडंडेंट अभी हमने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, आर बी। अच्छा वैसे अगर मैं यहाँ पे आर बी की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मैं यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँगा, ठीक? अब इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो दूसरी डायरेक्शन में होगी ना, अपवर्ड हो जाएगी ये। इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा बी बी, ठीक हो गया? डेल्टा बी मैंने Yes, sir. को इसलिए कहा है कि ये बी पे डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो बी मैंने दूसरा ऐड किया ना, ये इसलिए लिखा है कि ये अब जो मेरा रिडंडेंट था ना ये बी पे लग रहा था, इसलिए मैंने अगला बी बता दिया कि ये जो लोड लग रहा था ना वो बी पे लग रहा था, मतलब ये इसलिए मैंने बताया इसको, ठीक है, नाम दे दिया।
पहला सबस्क्रिप्ट जहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, दूसरा सबस्क्रिप्ट जहाँ लोड लग रहा है, जहाँ रिडंडेंट लोड नहीं, आप कहें रिडंडेंट लग रहा है, लोड तो फिर कोई भी हो सकता है ना, लेकिन रिडंडेंट हम कहेंगे इसको। ठीक हो गया? और एक्सटर्नल लोड की वजह से हो तो फिर हम सिर्फ नाट लगाएंगे, 0। ठीक हो गया? क्लियर? अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट मैं आर बी की वजह से फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट एक इसी डायरेक्शन में यूनिट लोड की वजह से निकाल दूँ, यानी जैसे 1 किलोमीटर लेट से कह देता हूँ इसको मैं, तो उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, डायरेक्शन तो यही होगी ना। उसको मैं अलग एक नाम देने जा रहा हूँ, स्मॉल डेल्टा बी बी। अब ये बात समझने की है, असल में लगना क्या है, आर बी। असल में क्या लगना है, आर बी। आर बी लगना है जिसने डिस्प्लेसमेंट मैंने नाम दे दिया डेल्टा बी बी। लेकिन मैं कहता हूँ यार आर बी को छोड़ो, मैं यूनिट लोड लगा देता हूँ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने आर बी को एज्यूम किया है अपनी शुरू की डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाए उसको अगर हमें आर बी का मैग्नीट्यूड पता हो तो उससे मल्टीप्लाई अगर कर दें डेल्टा बी बी को, तो ये डेल्टा बी बी ये बन जाएगा ना, ये स्मॉल डेल्टा है और ये कैपिटल डेल्टा है। इस बात से एग्री करते हैं आप? ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है अगर मैं यहाँ पे यूनिट लोड लगाऊं। अगर मुझे आर बी की वजह से डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो, कि यहाँ पे आर बी लगे, तो फिर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, आर बी टाइम्स दिस वैल्यू। एग्री? अगर स्ट्रक्चर लीनियरली बिहेव कर रहा है, लेट्स अज्यूम के कर रहा है। ये बात क्लियर है आप सबको? यस सर। सर ये रिपीट कर दें, समझ नहीं रिपीट कर दूं, हमने लगाना यहाँ क्या था, जो चीज यहाँ रह गई थी ये वाली, ऐसे ही करना था ना, आर बी लगाना था यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ना। इन दोनों को सम करेंगे ना फिर, जिसकी वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही थी, हमने उसको नाम दे दिया डेल्टा बी बी। एग्री? यस सर। अच्छा, मैं कहता हूँ यार आर बी जो है, इसको इसमें थोड़ा मसला ये आ जाता है कि आर बी तो पता नहीं होता। आर बी आपको पता है? नहीं पता। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लिखो ना, देखो ना यहाँ पे, और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फाइंड करना। यही तो फाइंड करने चले हैं, तो अब इसको यहाँ शो कर देंगे तो ये डेल्टा बी बी कैसे निकलेगा? अगर आंसर डेल्टा बी बी का निकल भी आएगा तो वो साला आर बी की फॉर्म में होगा, हम फिर फंस जाएंगे ना। समझ रहे ना आप इस बात को? जी जी सर। तो हम इस चक्कर में पढ़ने के बजाय कि इसको आर बी लगाएं, फिर ये डेल्टा बी बी का आंसर आर बी की फॉर्म में, आर यानी सम फैक्टर टाइम्स आर बी इस तरह करके आए, तो इससे अच्छा यार यूनिट लोड लगा देते हैं हम यहाँ पे, और हम ये कह देते हैं कि यार ये जो डेल्टा बी बी निकालना है ना, डेल्टा बी बी जो ड्यू टू आर बी है, इसको निकाल, डेल्टा बी बी को हम ऐसे निकाल देते हैं, आर बी टाइम्स डेल्टा बी बी, ये हम पहले निकाल देते हैं। ये क्या चीज़ है? अगर हम यहाँ पे यूनिट लोड लगाएं तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी उसको हमने स्मॉल डेल्टा बी बी कह दिया। इज दिस क्लियर? यार ये बिल्कुल सादा सी बात है। मसलन मैं आपसे कहूँ कि यार यस मुझे 7 kg प्याज है, उसकी कीमत चाहिए कि वो कितनी कीमत होगी। तो मैं आपसे कह देता हूँ कि यार आप मुझे ये बता दो कि 1 kg प्याज आप मुझे कितने का मिलेगा? आप कहते हैं 50 रुपये का मिलेगा। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे यूनिट का पता चल गया ना कि 1 kg की प्राइस क्या है, तो मैं कहता हूँ अच्छा 7 kg का करना होगा, तो मैं क्या कर लूँगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस फॉर 1 kg विच इज़ 50। समझ रहे ना? ये तो सादा सी बात है यार, यूनिटी वाला सादा सा प्रिंसिपल है। एग्री के? यस सर। कि मैं मिटा दे तो बाद में आप सोचेंगे ये भी आप आलू प्याज टमाटर की बातें हैं, मैं तो आर बी निकालने निकला हूँ। तो हमने तो आर बी, हमारे केस में वी नीड टू फाइंड कि आर बी की वजह से कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी। हम कहते हैं अच्छा चले यार पहले ये तो बताओ कि अगर आर बी के बजाय वहाँ पे यूनिट लोड लगता तो फिर कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी थी। ये पहले हम फाइंड कर देंगे, बाद में फिर हम फाइंड करेंगे डेल्टा बी बी को ऐसे कि यार ये आर बी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, आर बी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। क्लियर? यस सर। अच्छा जी,
अब मुझे बताएं कि इस वक्त मैं इस बात को बाद में रिपीट कर लूँगा। एनीवेज, अगर यूनिट लोड यहाँ पे, अरे यूनिट लोड मैंने रेंडमली कहीं भी नहीं लगा दिया, जहाँ आर बी लगाना था, जो आर बी की डायरेक्शन थी, यानी मैंने यूनिट लोड इधर नहीं लगाया, ये आर्बिट्रेरी से नहीं था, जहाँ से मैंने आर बी को हटाया है उसी पॉइंट, यानी पॉइंट बी के ऊपर, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आर बी ने होना है। एग्री? यूँ समझ लें कि ये रिप्रेजेंटेटिव है आर बी का, उसका नुमाइंदा है, बस उसमें स्केल में छोटा है या बड़ा हो सकता है, लेकिन है वही उसी का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर बी। ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये किसी किताब में नहीं लिखा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंटेटिव है आर बी का। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम में इतना लिख देता हूँ कि व्हेन आर बी इक्वल टू 1 इज अप्लाइड, और ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया था, एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाइड। ये सब किस पे अप्लाई हो रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। ऑलराइट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि वो जो असल बीम में इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है, अगर आपने उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करते हैं? आप कहेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट डेल्टा बी नॉट प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू आर बी, जिसको हमने दो स्टेप्स में स्प्लिट कर लिया। हमने कहा आर बी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड along आर बी। एग्री? यस सर। इक्वल टू, सॉरी अभी इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, अभी ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का तरीका। इसको मैं नाम देता हूं डेल्टा बी प्राइमरी स्ट्रक्चर, कि मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर वर्किंग की है ना। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, दूसरी दफ़ा उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर पे मैंने रिडंडेंट अप्लाई किया, उसकी यूनिट वैल्यू अप्लाई करके मैंने वर्कआउट किया उसको, तो मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली है, या मैंने इक्वेशन लिख ली, फाइंड ना आप या ना कहें बल्कि। अच्छा, अब मुझे पता है कि डेल्टा बी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, ये जो मेरा आंसर आएगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इसी के इक्वल आना है। ये जो मेरा गिवन बीम है जिसमें मुझे ये पता है इक्वल टू 0, डेल्टा बी एक्चुअल, इसका मतलब ये है कि डेल्टा बी एक्चुअल को मैंने फाइंड किया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन माय प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसको मैंने आंसर निकाला इक्वल टू, जब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू डेल्टा बी नॉट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं इस वक्त एज्यूम कर रहा हूँ, अच्छा मैं चलो बाद में बता दूँ ये बात, प्लस ये वाली डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू आर बी। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। आगे आपको ये कंडीशन मुझे पता है, ठीक। अब मुझे इस वक्त इसकी वैल्यू नहीं मालूम, अब मैं वापस आके देखता हूँ, अच्छा गिवन बीम में तो ये 0 है, क्योंकि गिवन बीम में ना यहाँ पे कोई सेटलमेंट हो रही है, ना ये सपोर्ट जो है वो कोई बैठ रहा है, ना ये कोई दब रहा है। ठीक है, ये एजम्पशन है जो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन ये आमतौर पे जो आप सिचुएशन होती है वो वाली मैं ले रहा हूँ। ठीक, तो मुझे पता चला कि दिस इज 0, तो अब मेरी सी इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अच्छा अब मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था यू कैन फाइंड डेल्टा बी नॉट बाय एनी मेथड यू लाइक। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, उसमें किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना ये आपको आना चाहिए, इसलिए आपको पहले एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिफ्लेक्शन फाइंड करने का तरीका सिखाया जाता है। ठीक, ये मैकेनिक्स एंड मटेरियल में पहले डिफ्लेक्शन फाइंड करने का तरीका सिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं ना, ये भी आप फाइंड कर लेंगे ना, ये 1 यूनिट लोड। तो अब तो एक चीज़ आपको नॉन है ना, ये वर्चुअल नहीं है बाय द वे, ये रियल है, ये रिप्रेजेंटेटिव है आरबी का। ठीक, ये वाकई में लगेगा बीम के ऊपर, आरबी की जगह लग रहा है, आरबी खुद रियल है ना, आरबी कौन सा कोई इमेजिनरी था, ये तो रियल था, आरबी तो वाकई बीम में एग्जिस्ट करेगा, उसी का एक नुमाइंदा यहाँ बैठा हुआ है, यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन, एंड दिस इज रियल, दिस व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है जी,
कंफ्यूज ना कर देना, इसमें कोई अभी वर्चुअल के चक्कर इसमें नहीं मैंने डाला, ये आपको इसी ये फार्मूला बेशक निकाल ले, मैं आपको फार्मूले की लिस्ट अभी दिखा दूंगा कि आप फार्मूले डायरेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर कर दूंगा ये भी। लेकिन ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज़ निकाली जा सकती है, डेल्टा बी भी फाइंड की जा सकती है, डेल्टा बी नॉट फाइंड किया जा सकता है यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी, ये चीज़ भी मालूम हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि मैं अपनी इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखते हुए समेशन कर रहा हूँ ना, चीज़ों को सम अप कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई साइन कन्वेंशन चाहिए इसके लिए कि डेल्टा बी नॉट की वैल्यू, अच्छा मैंने इसको जनरली प्लस साइन के साथ लिख दिया, ठीक है, इसके साथ भी प्लस लिखा है, इधर भी प्लस लिखा है, लेकिन अगर अच्छा इसका मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपवर्ड पॉजिटिव, अगर ये टर्म यानी मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, डेल्टा बी नॉट की मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वैल्यू आ जाती है 0.01 मिलीमीटर और ये वैल्यू आ जाती है डाउनवर्ड, डेल्टा बी की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 0.005 मिलीमीटर अपवर्ड। तो जब मैं वैल्यू बाद में पुट करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू के साथ मैं लिखूंगा, जैसे मसलन मेरी यहाँ पे 0.01 लिखी हुई है, तो मैं इसके साथ ऐसे लिखूंगा -0.01 मिलीमीटर, और इसी तरह इसकी जब वैल्यू पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा +0.005 मिलीमीटर। आप समझ रहे मेरी बात? इस वक्त मैंने इनको एज्यूम किया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ इस इक्वेशन को लिखने के लिए। बाद में अगर असल में इनकी वैल्यू डाउनवर्ड होगी यानी अपोजिट टू माई साइन कन्वेंशन होगी, तो मैं इनके साथ नेगेटिव साइन लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अभी इस वक्त मैं इन वैल्यूज में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, मसले को सॉल्व कैसे करना ये समझा रहा हूँ आपको। अब मुझे जरा बताएं कि यहाँ से आर बी फाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, जी sir. सर। हो सकता है सर। तो यहाँ से आर बी हम निकाल देंगे ना, इसकी वैल्यू डाल देंगे, इसकी भी वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी। उसका वैल्यू आएगी तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और इससे प्लस या माइनस साइन। को इसी तरह आंसर होता है ना आप इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं। अगर इस Yes, sir. Yes, sir. आ जाए, इसका आंसर अगर पॉजिटिव आंसर आ गया, इसका मतलब ये बनेगा कि हमने जो ऊपर यहाँ पे डायरेक्शन एज्यूम की हुई है, ये वाली जिसकी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फिर ये यहाँ पे शो कर दिया था 1 अपवर्ड, इसका मतलब है कि ये हमने करेक्ट डायरेक्शन एज्यूम की थी, एज्यूम डायरेक्शन वाज करेक्ट। एग्री? और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए, it means assumed direction was wrong and we need to reverse the direction. Clear? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इस इक्वेशन का एक नाम है, we give it a special name to this equation. This is called कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। पूरा नाम इसका ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, लेकिन चले आप इसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी कह दें तो इनफ है। इसको क्या कहेंगे? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक, कंपैटिबिलिटी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आप जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो जो सम अप आप कर रहे होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं? फोर्सेस होती हैं ना, या मोमेंट्स होते हैं, फोर्सेस या मोमेंट्स, ऐसे ही है जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। Yes, sir. कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में हम सम अप करते हैं डिस्प्लेसमेंट्स को। वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स भी हो सकती हैं, वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट्स भी हो सकती हैं, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकती है लीनियर या कोई रोटेशन हो सकती है। यदि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की जो टर्म्स होती हैं, दोज आर एक्चुअली सम डिस्प्लेसमेंट्स। जिस तरह इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए यू नीड टू पिक अप एंड क्लियरली मेंशन योर साइन कन्वेंशन, इसी तरह कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के लिए यू नीड टू क्लियरली मेंशन योर साइन कन्वेंशन। क्लियर? सर अगर ये साइन कन्वेंशन यूज करें तो फिर ये एक नेगेटिव नहीं आती टर्म एक इसमें? हाँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा बी नॉट की जो वैल्यू जब आप इंसर्ट करेंगे विद अलजेब्रिक साइन,
तो दैट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू आप 0.01 मिलीमीटर, चूंकि ये डाउनवर्ड है तो आप इसको -0.01 पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे आपने वैल्यू विद अलजेब्रिक साइन पुट करनी है। दैट अलजेब्रिक साइन विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, कि आपकी जो एज्यूम आपकी जो साइन कन्वेंशन है उसके अलॉन्ग है तो पॉजिटिव, आपकी साइन कन्वेंशन के अपोजिट है तो नेगेटिव। क्लियर? जी सर, जी सर। अल्टीमेटली वैसे आपको समझ तो आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू डालूं और यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू डाल दूंगा तो आर बी की अल्टीमेटली मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, जिसका मतलब ये बनेगा कि हमने जो इसकी यहाँ पे डायरेक्शन एज्यूम की थी ये डायरेक्शन सही थी, वाकई ये अपवर्ड है। यस सर। कम बैक टू दी ओरिजिनल प्रॉब्लम। ये हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था कि समहाउ आर बी निकाल दें, यही था। इसलिए मैंने आपको बार बार शुरू में कहा था कि ये सारा जो यहाँ से नीचे प्रोसेस किया है, यहाँ से लेकर नीचे जितना प्रोसेस किया है, दिस वाज ऑल इन सर्च ऑफ आर बी। क्लियर? Yes, sir. Now once you know your RB value, you can put it back over here and find RA as well. And similarly, you can put the value of RB over here and get the value of MA as well. What does it mean? The problem is solved, isn't it? Yes, sir. So this is how we will deal with the analysis of indeterminate structures. Now there are two different categories of methods for analyzing indeterminate structures. The method that we have discussed today and that we have just outlined is called force method. The method that we have discussed today is called force method. Now why do we call it a force method? Because look at this equation. Once you have determined these displacement terms, what is the unknown in this equation? Force Reaction RB, which is the force. Reaction force is Which is unknown. the force. That's why we call it force method. So in force method, the primary unknowns are forces, and forces means it can be a force or a moment. Here the term force refers to both force and a moment. So in force method, the primary unknowns are the forces, and these primary unknowns appear in the compatibility equations. We need to write down compatibility equations. And the primary unknowns in those compatibility equations are some forces. अब हमारे पास एक unknown, ये 1 degree determinate था ना, ये बीम, क्यों जी 1 degree determinate था? Yes, sir. तो हमने Yes, sir. एक रिडंडेंट चूज करने की जरूरत थी हमें, जिसको हमने कहा आरबी को चूज कर लेते हैं। ठीक हो गया? एक 1 डिग्री डिटर्मिनेट होगा तो एक रिडंडेंट लेंगे और हमें उस एक रिडंडेंट को फाइंड करने के लिए एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए होगी। क्लियर? अगर दो Yes. होते तो हमें, यानी सेकेंड डिग्री इंडिटरमिनेट होती है बीम, तो हमें दो रिडंडेंट्स चूज करने पड़ते और हमें उन दो रिडंडेंट्स को फाइंड करने के लिए दो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लिखनी पड़ती और उन दो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम वहाँ से दो रिडंडेंट्स निकालते, फिर हम वापस अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में आके उनको यूज करते और इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन आता है। यानी प्राइमरी अननोन जब हम यहाँ पे कह रहे हैं ना, प्राइमरी अननोन्स आर फोर्सेस। प्राइमरी अननोन का मतलब है कि हम प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं कि हमें कुछ फोर्सेस, हमें सारी फोर्सेस निकालनी है, इनमें से कुछ फोर्सेस हैं जिनको हम पहले अगर फाइंड कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी हम सर्टेन फोर्सेस को एज प्राइमरी अननोन्स ले लेते हैं, यानी रिडंडेंट्स जिनको हम कह रहे हैं। ये प्राइमरी अननोन्स बेसिकली रिडंडेंट्स होते हैं। ठीक, तो फोर्स मेथड में द प्राइमरी अननोन्स आर फोर्सेस व्हिच आर
which appear in the compatibility equations. Clear? Yes, sir. अब ये आपके ऊपर है, ये एक काम आपको करना पड़ेगा. क्या काम करना पड़ेगा? You need to know how to determine these deflection. वैसे आसान, बाकी प्रोसेस कॉन्सेप्चुअली तो ये प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है. लेकिन जब आप सॉल्व करने निकलेंगे तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने में तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं लगता ना. Yes, sir. तो इसका मतलब जी ये कि सर. अगर मैं सॉल्व करने, अब प्रोसेस आपको पता है, ये मैं इस तरह से जो प्रोसेस मैं आपको लेके चला हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम हमने इस कंसेप्चुअल बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए. जब हम सॉल्व करने लगेंगे ना, तो जैसे ही मैं आपको ये बीम दे दूंगा, ये वाला बीम, आप फौरन ही अपना कोई रिडंडेंट चूज करके अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख लेंगे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ये वाला. और उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीधा आप एक दफ़ा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, एक दफ़ा आप एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई कर दें, जितनी भी लग रही सारी, उसको अलग अलग नहीं करना. एक्सटर्नल लोडिंग जितनी लग रही है वो इकट्ठी एक ही दफ़ा यहाँ आपने लगा दी. मसलन अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर के साथ एक यूडीएल भी लग रहा होता या कोई और लोड लग रहा होता, वो सारी मैंने लगा देनी थी. सिर्फ रिडंडेंट्स को मैंने अलग अलग लगाना था, ठीक. तो वो एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई कर दो. जो प्राइमरी आपने, जो आपका रेस्ट्रेंट डायरेक्शन थी बी के ऊपर, जो आपने रिडंडेंट चूज़ किया था, उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दो, जो यहाँ वर्टिकल बनती है उसी पॉइंट के ऊपर जिसको मैंने डेल्टा बी नाट कहा हुआ है, ये फाइंड कर दो. उसके बाद उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर अपना यूनिट लोड लगाओ, यहाँ पे आर बी का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट लोड, डेल्टा स्मॉल डेल्टा बी भी निकाल दो. जब ये आपके पास आ जाए तो इस इक्वेशन में पुट करके, ये इक्वेशन लिख के इक्वेशन में पुट करके आर बी निकाल दो. और अब जब आपके पास आर बी आ गया है तो आपका प्रॉब्लम इस तरह का है. अब ये आर बी आपको पता है, इसकी वैल्यू नॉन है आपको. अब आपका ये जो लोडिंग लग रही थी यहाँ पे 10 किलो न्यूटन की, अब आपको ये, अब तो ये काम आसान हो गया ना. जैसे ये एक लो फोर्स है नॉन, ये अब इनिशियली तो एक अननोन फ्रैक्शन था, लेकिन अब तो हमें ये पता चल गया, अब तो ये भी एक नॉन फोर्स है, ठीक है. तो अब आप ये 3 फ्रैक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, इनको इजीली फाइंड कर रहे. यानी शुरू में ही आपको ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पहले ही पता चल जाएगा, देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा ना कि कितने डिग्री इंडिटर्मिनेट है और कितने मुझे इसमें से रिडंडेंट चूज करने होंगे ताकि मैं अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दूं. ये प्रोसेस था आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाने के लिए. आपको प्रोसेस के अंदर पता चल जाए कि ये करना क्यों पड़ रहा है. अगर मैं डायरेक्टली आपको ये सिखा दूं कि अच्छा आप बीम का सीधा ये कि हटा दो, फिर ये निकाल दो, डिफ्लेक्शन फिर ये निकाल दो, आप कहेंगे ये कर तो रहे हैं लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो ये कहाँ से आ रही है बात, ठीक है. अब आपको आई होप कि ये बात समझ आ गई है कि ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्यों लिखनी पड़ती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों बनाना पड़ता है, ठीक. आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब आप 5 मिनट की ब्रेक लें, और इस 5 मिनट की ब्रेक के बाद मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा जनरलाइज करके आपको समझाऊंगा, फिर क्विकली हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक हो गया. 231 मेरे पास जी सर. Okay, sir. तो आप 236 पे वापस आ जाए नहीं यहाँ से, मतलब वापस आने का मतलब है कि हम रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है. 2:36 PM के ऊपर. Okay, sir. All right. So before going to the discussion of a specific example, let's have a look at some broad aspects of this course. We will be discussing mainly, we will be discussing indeterminate structures in this class primarily. We will have some indeterminate structures as well, but primarily this class is going to be about indeterminate structures. And as I discussed, there are 2 categories of method for analysis of indeterminate structure. There are 2 methods, basically force method and the displacement method. We have just discussed how force method works, what are the primary unknowns in a force method, and then after we finish with the force method, we will discuss this displacement method. In this displacement method, again, there are different and there are different approaches. We'll discuss these 2, slope deflection method and moment distribution method, inshallah, in this semester. And you will learn this stiffness method, which is a matrix formulation based method, in your next year 7th semester, inshallah. So this is just the broad, we will be using this method for beams,
for trusses, for arches, for frames, and yeah, these kinds of structures. All right, so force method, all 4 types of structures: beams, frames, trusses, arches, and then we will apply displacement method only to beams and frames, that because this is how these methods work. And then this principle of superposition, we have just discussed it, so I'm just going to skip this one. Next is the concept of stiffness. It's very important to understand the concept of stiffness. The basic definition, we often represent this stiffness by small k. Now the basic definition of stiffness is load required to cause unit displacement. Load required to cause unit displacement. So the first thing that should come to your mind is that stiffness is a load, but that is the one you need for producing unit displacement. What does it mean? Now it can take different forms. If a body is subjected to axial loading, you will be considering axial stiffness. For example, I can say I need to apply some load P in order to produce certain displacement. Now the load that I need to produce a unit displacement, axial load required to produce axial displacement would be called as axial stiffness. You can represent it by K axial. Now naturally the units will be units of force by the units of displacement. So if you are measuring, it may be Newton per meter, kilonewton per meter, pound per inch, kip per inch, pound per foot, whatever it is. All right. Now in case of bending stiffness, it can take different forms. The reason for that is, for example, if this given beam, हो सकते लोड B पे लग रहा हो और मैं डिस्प्लेसमेंट C पे फाइंड कर रहा हूँ. हो सकते मैं जहाँ लोड लग रहा है उसी पॉइंट B के ऊपर ही नीचे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ. तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो लोड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, वो लोड आपका बीम में किस लोकेशन पे लग रहा है और जहाँ आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं वो कहाँ पर है, उसकी बेस पे इसकी टर्म्स डिफरेंट बन जाएंगी. ठीक है. तो मतलब कि आप इस समझ रहे हैं इस बात को. मसलन ये जो K है ये एक डिफरेंट K है. ये K कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ? द लोड P रिक्वायर्ड एट B पॉइंट यहाँ पे टू प्रोड्यूस द यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट C, क्योंकि वो लोड खाली B पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस करता ना, वो तो थ्रू आउट एक डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल जनरेट करता है ना, रिफ्लेक्टेड शेप जनरेट करता है. तो हम अगर C पे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं और लोड B पे देख रहे हैं तो ये PB और डेल्टा C बन जाएगा. यानी इस तरह की टर्म भी हो सकती है. ठीक. इसी तरह मैं कह सकता हूँ ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि लोड रिक्वायर्ड PB डिवाइडेड बाय थीटा A, यानी लोड रिक्वायर्ड एट B टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट A. ऐसा भी हो सकता है. स्लोप जिसको आप कहते हैं थीटा A, रोटेशन एट A या स्लोप एट A. उस केस में इसके यूनिट्स न्यूटन पर रेडियन हो जाएंगे. इसी तरह से अगर मैं लेट्स से यहाँ पे कोई एंड मोमेंट लग रहा है, एंड पे लग रहा हूँ या कहीं और जगह भी लग सकता हूँ, इधर भी लग सकता था, कहीं भी लग सकता. अगर ए पे मोमेंट लग रहा है, लेट्स से उसको हम MA कह देते हैं, और इसकी वजह से भी एक डिफ्लेक्टेड शेप प्रोड्यूस होगी. अब अगेन डिपेंड करेगा कि मैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे ले रहा हूँ, C पे ले रहा हूँ, B पे ले रहा हूँ या A पे कोई रोटेशन ले रहा हूँ. इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक. तो इसका मतलब है कि इट कैन बी न्यूटन मीटर पर मीटर, न्यूटन मीटर पर रेडियन, सो ऑन. डिफरेंट फॉर्म्स इसके बन सकते हैं. तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक जनरलाइज लिख दिया कि बेंडिंग स्टिफनेस है तो बेसिकली लोड ओवर डिस्प्लेसमेंट. अब लोड आप क्या ले रहे हैं, वो एक फोर्स है या मोमेंट है. डिस्प्लेसमेंट आप एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और ये डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं. लोड कहीं भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी. ठीक. तो इस तरह से इनफाइनाइट वेज में आप डिफाइन कर सकते हैं बीम की स्टिफनेस. इसका मतलब बीम की जब इस बार की मैं एक्सियल स्टिफनेस की बात करूं तो बस एक ही एक्सियल स्टिफनेस है, पहले एक ही जगह पे लोड लगेगा, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, एंड ऑफ द स्टोरी. लेकिन अगर मैं ये हो सकता है कि आप कहें कंप्रेसिव में हो सकता है एक्सियल स्टिफनेस और हो, टेंसाइल में डिफरेंट हो. ठीक है. वो एक अलग इसकी हो सकती है डिस्टिंक्शन. लेकिन एक्सियल स्टिफनेस जनरली हमें अगर मटेरियल की सेम प्रॉपर्टी है, टेंशन और कंप्रेशन में स्टील की होती है, तो हम एक ही टर्म कहेंगे. लेकिन बेंडिंग में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप जो स्टिफनेस ले रहे हैं वो लोड कहाँ पे है आपका, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे ले रहे हैं आप. ठीक. उस हिसाब से बीम की डिफरेंट स्टिफनेसेस बनेगी. अच्छा, इसी स्टिफनेस का एक रेसिप्रोकल टर्म है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी.
ये रेसिप्रोकल स्टिफनेस का क्या मतलब, इट इज डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट लोड। अगर हम यूनिट लोड अप्लाई करें तो उससे कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, इसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। वही सिचुएशन दोबारा कंसिडर करते हैं, अगर एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी की बात है तो एक मेंबर को आप एक्सियल लोड करें और वहाँ से एक्सियल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, तो आप एक्सियल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट लोड, ठीक, इससे यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मीटर्स पर न्यूटन या इंच पर पाउंड एटसेट्रा, ठीक। उसका रेसिप्रोकल मीटर पर मीटर के बजाय आप ये मीटर पर न्यूटन हो जाएगा। यानी जब आप फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म सुने तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, ये कोई डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आगे थोड़ी सी ये बात भी याद रखनी है कि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, बस, ठीक हो गया। इसी तरह बेंडिंग स्टिफनेस अगेन इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म, जैसे बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह बेंडिंग स्टिफनेस की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, इसी तरह बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक। तो आप डिपेंड करेगा कि आप किस डिस्प्लेसमेंट ओवरलोड है। अब डिस्प्लेसमेंट लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, इसी तरह लोड फोर्स भी हो सकता है, कोई मोमेंट भी हो सकता है। सही हो गया। दिस हाउ इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म। आप इसको डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मली स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे FCB मैंने लिखा है, लेकिन हम इसको मैंने डिफरेंट इस तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक। FCB यानी स्मॉल डेल्टा की टर्म हम यूज़ करेंगे। ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये ज़रा समझ लीजिएगा। मसलन मैं लिख रहा हूँ डेल्टा CB, इसका मतलब क्या है, मैं C पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, या मैं नीचे शायद लिखा हो इसको नीचे यहाँ पे, चलिए मैं इसकी तरफ आता हूँ बाद में, ये हम नीचे ले जाता हूँ आपको, बल्कि ये F हो या डेल्टा हो, आप जो भी सैम्पल, हम इसको डेल्टा ही कहेंगे, स्मॉल डेल्टा। इसके जो दो सबस्क्रिप्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे डेल्टा B हो गया, सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें, स्क्रीन नजर नहीं आ रही सही से। अच्छा, आप बताइएगा मुझे जब आ जाए आपके पास। स्क्रीन आई? नहीं सर अभी तक तो नहीं शो हुई। बाकियों को भी नहीं शो हो रही है? जी सर हो रही है। हो रही है सर, स्क्रीन शो हो रही है। आप थोड़ा सा सर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जी आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे हम मैंने F से रिप्रेजेंट किया, लेकिन मैं डेल्टा से आप रिप्रेजेंटेशन करूँगा। बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा, इसको मैं डेल्टा कह देता हूँ, स्मॉल डेल्टा से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें जो दो सबस्क्रिप्ट हैं, पहला सबस्क्रिप्ट होगा जहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट एट विच यू आर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट, और ये सेकंड सबस्क्रिप्ट होगा जहाँ पे आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिसकी मसलन में यूनिट लोड, यहाँ यूनिट लोड ज़ाहिर है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय यूनिट लोड। इसका मतलब है जो लोड लग रहा होगा वो यूनिट लोड होगा, लेकिन कहाँ पे लग रहा हो, ए पे लग रहा है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सबका सेकंड सबस्क्रिप्ट ए है। क्यों? क्योंकि वो जो यूनिट लोड लग रहा है वो ए पे लग रहा है, बाकी जहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं उस हिसाब से पहला सबस्क्रिप्ट वेरी कर रहा है। क्लियर? एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताएं थोड़े सा, मैं क्विकली देखना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई फ्लेक्सिबिलिटी का जनरली कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि एक बीम है वो इतना है और दूसरा बीम जो है वो इतना लंबा है, यानी लेट से ये काफ़ी उससे लंबा है, दोनों को मैं यहाँ लोड करता हूँ, यूनिट लोड यहाँ रखता हूँ, इस पे भी यहाँ पे भी यूनिट लोड रखता हूँ, तो आप अपने सेंस यूज़ करते हैं। ये दोनों बीम बाकी बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ लंबाई का फ़र्क है, ये छोटा बीम है, छोटी लेंथ का है, और ये बड़ी लेंथ का है। तो मुझे बताएं कि अगर मैं लेट से ये पॉइंट बी है, तो मैं अगर डेल्टा बी ये फ्लेक्सिबिलिटी ये वाली, और इस बीम में यहाँ पे बी पॉइंट है, इसकी भी डेल्टा बी, ये दोनों अगर निकालना चाहूँ तो कौन सा बीम ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा जिसकी लंबाई ज़्यादा है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा? ज़्यादा लंबाई वाला। ज़्यादा लंबाई वाला सर ज़्यादा लंबाई वाला फ्लेक्सिबल होगा, यानी यहाँ पे यूनिट लोड रखने से इसके अंदर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, और इसमें यही यूनिट लोड रखने से कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी। तो इसकी ज़्यादा होगी ये वैल्यू, और इसकी कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, ठीक है, ये मोर और वो लेस, ठीक है। अगर मैं स्टिफनेस की बात करता, इसकी स्टिफनेस इसी यानी यही हमारा रेफरेंस है, लोड भी बी पे, डिस्प्लेसमेंट भी बी पे, तो इसकी स्टिफनेस बताएं
स्मॉलर वाले पे होगी, स्मॉलर। इसकी स्टिफनेस ज़्यादा, मोर होगी सर, ज्यादा होगी। इसकी स्टिफनेस कम। अब आपको समझ, जिस चीज़ Yes. को बेंड करना आसान है, जनरली अगर आप माइंड में अपना एक व्यू बनाना चाहें, जिस चीज़ को बेंड करना आसान है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिस चीज़ को बेंड करना या डिफॉर्म करना मुश्किल है वो ज़्यादा स्टिफ है। ऑलराइट, इसके बाद हम आ जाते हैं जनरल जो फार्मूलेशन है। मैंने आपको ये मेथड एक बीम के थ्रू समझा दिया, लेकिन ये मेथड ट्रसेस पे भी अप्लाई होता है, आर्चेस पे भी होता है, फ्रेम्स पे भी, बीम सब के ऊपर होता है। तो हम इसको ज़रा जनरलाइज फॉर्म देखते हैं कि इसलिए यहाँ पे मैंने कोई बीम नहीं शो किया, यहाँ पे मैंने आपको कोई भी जनरल शेप बॉडी की ड्रॉ कर दी, ठीक, और उसके ये डिस्प्ले, ये आपको सपोर्ट शो कर दिए, ठीक, ये रेस्ट्रेंट्स आप इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्प्लेसमेंट रेस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक रोलर है सिर्फ वर्टिकल, यहाँ पे भी सिर्फ वर्टिकल, ठीक हो गया, एग्री। और इस पे ये यस सर। ये इस पे एक्सटर्नल लोड्स हैं, दीज आर द एक्सटर्नल लोड्स, सॉरी, ये और ये, दीज आर एक्सटर्नल लोड्स, और ये क्या है इसके रेस्ट्रेंट्स। इन रेस्ट्रेंट्स में से अब आप बताएं ये कितने डिग्री इंडिटरमिनेट है, ये 2D एलिमेंट है, कितने डिग्री इंडिटरमिनेट है ये। यहाँ पे दो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, एक यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है। कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं टोटल? 3। और मेरे पास अननोन फ्रैक्शंस कितने आ रहे हैं? 4। इट मींस ये कितने डिग्री इंडिटरमिनेट हुआ? 1 डिग्री। 1 डिग्री। वन रिडंडेंट, ऐसा ही है। यस सर। इससे मैंने इसको रिडंडेंट ले लिया, ठीक, तो मेरे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बच गया, जिसके अंदर मैंने ये डॉटेड में शो कर दिया। इसका मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये हिस्सा नहीं है ये रेस्ट्रेंट, लेकिन आपको पता हो कि इसमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर में से क्या ड्रॉप करके मैंने ये बनाया है और वो किस डायरेक्शन में, किस पॉइंट पे था, ठीक हो गया। सी पे कोई रिएक्शन इस वक्त नहीं है, ठीक, ये समझ ले कि यहाँ पे कोई रिएक्शन कुछ नहीं लगा हुआ, वो हमने ड्रॉप कर दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना था ना, तो हमने अगर इसको एज ए रिडंडेंट चूज कर दिया तो हमने इसको यहाँ पे शो नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको बताना था कि यहाँ पे जो रेस्ट्रेंट गिवन बीम में लगा हुआ था उसकी डायरेक्शन क्या थी और वो किस जगह पे था, यानी सी पॉइंट पे था, सी पॉइंट पे था और वर्टिकल था। ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि मैं इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का 2 दफ़ा एनालिसिस करना है मैंने। एक मैंने करना है सब्जेक्टेड दिस इट टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है, एक दफ़ा मैंने इसको सब्जेक्ट करना है टू एक्सटर्नल लोड। अगर मैं इसको रीड्रॉ कर लूँ आपके लिए, या मैं एक सर्टेन पार्ट को ही कर देता हूँ इसको। अब मैं दो स्टेप्स में करूँगा इसको। एक दफ़ा क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अच्छा आगे है मेरे पास, नीचे शायद पड़ा हुआ है, नहीं, अच्छा चलिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने चले मैं बुक से उठा देता हूँ इसको ताकि आप बुक के साथ इसको लेके चल सकें। ये 2 स्टेप्स मुझे करने हैं, सॉरी, जैसे मैंने बीम के साथ किया है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये तरीका हम यूज करेंगे। अब ये एक्सटर्नल लोड लग गया इसके ऊपर, और सी पॉइंट, एक तो मैंने किस पॉइंट पे निकालना है और किस डायरेक्शन में निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में फाइंड करनी है, ये पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर में से जो हटाया है रेस्ट्रेंट या रिडंडेंट, वो कहाँ पे लग रहा था और उसकी रेस्ट्रेंट डायरेक्शन क्या थी। ये इसलिए यहाँ पे बताना आपको ज़रूरी था, ठीक। तो सी पॉइंट पे हमने जो रेस्ट्रेंट है उसकी डायरेक्शन वर्टिकल है, लिहाजा हम सी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड, जिसको हमने नाम दे दिया डेल्टा सी नॉट। अब हमने इसको अपवर्ड शो कर दिया, हमें नहीं पता असल में ये अपवर्ड है या नहीं, लेकिन हमने इसको शो अपवर्ड कर दिया। अगर असल में इसका आंसर नेगेटिव बनेगा तो फिर असल में अगर ये डाउनवर्ड होगी डिस्प्लेसमेंट तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, लेकिन
अब चूंकि जनरलाइज डिस्कशन हो रही है तो हम इसको अपवर्ड शो कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये। इसी तरह फिर हमने इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे अब एक सडन लोड नहीं लग रहा ये वाला, अब हमने सिर्फ इसके ऊपर ये यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंसी RC का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट लोड अप्लाई कर दिया, और अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दी जिसको हमने नाम दे दिया डेल्टा CC। ओके, अब हमारे पास इसमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, अब आप मुझे बताएं क्या कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी डेल्टा प्राइमरी स्ट्रक्चर में यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो कैसे कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? डेल्टा C नॉट व्हाट नेक्स्ट प्लस RC times next delta CC, which is displacement due to unit value of RC। ठीक हो गया। और फिर हमारा जो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नहीं है, ये हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया। ये नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे कि अब हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, चूंकि उसमें यहाँ पे एक अनयील्डिंग इनकम्प्रेसिबल कोई सपोर्ट लगी हुई थी, कोई सेटलमेंट उसमें नहीं थी, तो गिवन बीम में तो डेल्टा C 0 है, तो और यही हमारा डेल्टा, मैं बल्कि ऐसे लिख देता हूँ डेल्टा प्राइम, पहले आपने ऐसे लिखना है डेल्टा प्राइम एक्चुअल बीम और प्राइमरी का इक्वल है, और फिर आपने बताना है कि ये 0 है, और इसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी है डेल्टा C नॉट प्लस RC टाइम्स डेल्टा CC। ये तो हमने जैसे बीम में कर दिया उसी तरह आपको नजर आ गया। क्लियर है ये? यस सर। RC निकाल देंगे, जब आपके पास RC आ जाएगा तो आप उस RC को जब को नॉन हो जाएगा तो फिर आपके बीम, आपके यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू आ गई RC की, अब आपको बाकी जो 3 रिएक्शंस हैं इनको आप यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फाइंड कर सकेंगे। ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, 3 बज गए, तो आई विल बी लीविंग द रेस्ट डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। आपने ये काम करना है, वो काम ये है कि हमने जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम लिया था उस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना है। क्या करना है? उस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली, अब हमने तो प्रोसीजर डिस्कस कर दिया ना, आपने इस प्रोसीजर के अंदर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी। क्या मतलब इसका? आपने ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं जिसकी मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ लिखी थी, ये वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है विद डायरेक्शंस, ठीक, और फिर यहाँ पुट करके आर भी फाइंड करना है। जब आर भी पता चल जाए तो बाद आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ करके उसको फाइंड कर देना है, अपने बाकी रिएक्शंस फाइंड करना है, ये आपने करना है। ठीक है, कि मैं आपको असाइन करने जा रहा हूँ टीम्स के ऊपर, और आपने इसका मुझे सोल्यूशन देना है। ठीक, मैं आपको इसी नोटबुक के अंदर मैं आपको एक चीज़ दे दूँगा जो आपको वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है उसको, लेकिन मैं आपको वो शेयर कर लूँगा आपके साथ, जो आपको जो चले इजी लगेगा आप उसको फॉलो कर लें। मैं देखता हूँ, अगर मैं आपको इसी किताब में एक टेबल है, मैं आपको उस टेबल पे ले जाता हूँ, अगर आप, या मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चले वो मैं ऐसे कर लूँगा कि ये आपको जो नोटबुक है ना, ये वाली, ये नोटबुक आप अपनी टीम से एक्सेस इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं जी सर। इसी जगह यहाँ अलग सेक्शन डाल दूंगा, या यहाँ पे इसी जगह कोई पेज ऐड कर दूंगा, उसके अंदर मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली फाइंड किया जा सकते हैं। ठीक है जी सर। इस तरह का मैं आपको टेबल डाल दूंगा। ठीक है, मैं आपको टेबल वहाँ पे डाल दूंगा। मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है, देन आई विल जस्ट लीव यू।
Is 0 1? 0 1? नो सर 0 1 is absent. Okay. नो सर नहीं है Okay. 0 2? यस 0 सर वो 3? नहीं है 0 3? प्रेजेंट सर 0 3? यस सर प्रेजेंट Okay. 0 4? नहीं है 0 4. 0 5? 0 5 भी नहीं है. 0 6? Present, sir. Present. 0 6 is present. Okay. 4 और 5 absent है. 6 is present. 7? Present, sir. 7 is present. अच्छा. और 8? Sir, present. 9? Present, sir. 10? Present, sir. 11? Present, sir. 12? अभी लीव नहीं करना आपने. 12 is absent. 13? Yes, sir. 14? 15? 16? Present, sir. 16 is present. 17? 18? 19? Present, sir. 19 is present. Okay. 20? Present, sir. 21? 21? 22? 23? 23 is absent. 23 is absent. Okay. 24? 25? जी सर present. 26? 25 is present. 26 is absent. 27? Absent. 28? Yes, sir. 29? 30? 31? Yes, sir. 31 is present. Sir, 32? present. 32 is present. Sir, 30. 30. 30 present है. 31? Yes, sir. 32? 32? 33? 34? 35? 30? Present, sir. 35 present. Okay. 36? 37? 38? Yes, sir. 38 present. 38 is present. 39? 39 नहीं sir. 38 Okay. तक sir. Okay. That's it. Anybody left? Sir, 304 present है. 304. Okay. 304. 304. सर 17 कह रहा है कि नेट इशू है, वो भी प्रेजेंट है. 17 क्या कह रहे हैं? कह रहा नेट इशू है, मेरी आवाज नहीं आई आपको, तो प्रेजेंट है वो. अच्छा. ओके. और Sir, 315. 315. उमैर? Yes, sir. Okay. Okay, that's it. Thank you very much. You can leave the class now.